Hello students, welcome back. Children, as per your demand, today's lecture we are going to discuss some of the MCQs, which is going to be the main theme for your papers that you will be attempting for the semester or the fifth semester. So children, today's lecture we'll just try to discuss some of the MCQs that we have already studied in the topics. Now we will just try to understand how these MCQs can be solved. Okay, this is just a sample children how you are supposed to solve the MCQs, because ultimately exams में थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको पूछ सकते हैं, but this is the pattern that we generally have children. Okay, so module number 1 children, in which we studied about the macroeconomic overview of India. Okay, and in that children we studied about the new economic policy. So we had new economic policy. Along with that children we also had the human development along with health and education. Then we had the sustainable development goals plus the foreign investments that we have children. Okay, so the first chapter children that we studied was the new economic policy of 1991. So some of the basic features of this policy that we know: liberalization, privatization and globalization. So the first question children that we have in front of you is, can you just see the question here? It reads, since 1951 India has been a dash economy. Now children, I have already told you during the lectures that there are three types of economic systems that we have, what's called as capitalism, socialism and mixed economy. While some nations are socialist countries, some countries are capitalist countries. Now India has tried to strike a balance between the two, and so when we started with the economic planning children, we have started with what is known as a mixed economy. Capitalism mein bachlo all the factors of production are owned, controlled and managed by the private individuals. Socialism says ki like there is nothing that belongs to the private, everything is collectively owned by the society, that means the government. But in India children, there are certain sectors which are owned by the government and certain other sectors which will be totally handled by the private. So that's called as the mixed economy. So chalo, that's the first answer that we have, which says that since 1951 India has adopted the system of mixed economy. Okay, acha. Then children, the second fill in the blank that we have in front of you here, which says that which of the following sentences would best describe the Indian economy in 1991 on the phase of those economic reform children. जब economic reforms हम लोगों ने initiate किए थे, तो इंडिया के economy को describe करने के लिए इसमें से best sentence कौन सा होगा? Okay, let's start from point D. So children, point D here, which says that current account surplus and fiscal deficit, मतलब अपने balance of payment में क्या था? Surplus. No, that's not true. Huge current account deficit plus fiscal surplus, that is also not true, because we didn't have a fiscal surplus, fiscal deficits होते थे. Low inflation, low foreign exchange reserves, that would be also wrong children. So बचता क्या अपने पास? High inflation and low foreign exchange reserves. मतलब inflation was almost like children double digit, and we were just like totally done away with the foreign exchange reserves. जो हमारे पास foreign exchange reserves थे children, they were not enough even to meet 2 weeks imports from other countries, right? So the answer is high inflation and low foreign exchange reserve children. Okay, so that's the answer that we have here children. So option A should be the answer. Okay, the third fill in the blank that we have here, which says that one of the measures adopted to control inflation in 1990-91 was, अच्छा, जो basic monetary measure use किया गया था बच्चों 1990-91 में to control inflation was lowering of CRR and SLR. मतलब क्या होता है बच्चों लोग? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंक का वो पैसा जो हम लोग आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं. अच्छा, SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक का वो पैसा विच इज इन्वेस्टेड इनटू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज.
तो CRR चिल्ड्रन टू अराउंड 15%। अच्छा, और SLR ऑलमोस्ट 38.5% हुआ करता था जो 1990s तक हम लोगों ने अब तक उसको मतलब इट वाज ब्रॉट अराउंड 4%। एंड SLR चिल्ड्रन विच इज अराउंड फॉर एग्जांपल कि लाइक 21% पे लाके छोड़ दिया गया था तभी। तो इससे क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक CRR एंड SLR when they are lowered, what actually happens is like बैंक्स के पास बच्चों लोग ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगा। अच्छा, बट दैट वुड एक्चुअली इग्नाइट इन्फ्लेशन चिल्ड्रन। ओके, सो आई एम गोइंग फॉर द आंसर व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिंग CRR एंड SLR। सो दिस वुड बी रॉन्ग। बच्चों ध्यान रखने का, मैंने आप लोगों को कभी सिखाया रहेगा कि कोई भी रेट आता है, कोई भी रेट आप शॉर्टकट में याद रखना, इन्फ्लेशन में कोई भी रेट को बढ़ाया जाता है, दैट मीन्स वी आर सपोज टू रेज। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, इफ एनी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, अगर कोई इकोनॉमी बच्चे लोग रिसेशन के थ्रू जा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग रेट्स को क्या कर सकते हैं, वी आर सपोज टू लोअर द रेट्स को कम किया जाता है बच्चे लोग। ओके, देन द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे चिल्ड्रन, द आंसर इज सी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, रेजिंग CRR एंड SLR, that was the major children which was adopted. Okay, but overall children we can say that like whenever we actually talk about these policies which are actually some of the instruments which are used for controlling inflation. Acha, next, which of the following measures are implemented by the government in order to reduce current account deficit? 1991 में बच्चों अपने करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा डेफिसिट था। मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में कभी बताया रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों लोग एक साइड में हम लोग पूरे की पूरे रिसीट्स लिखते हैं फॉरेन ट्रेड के, और एक साइड में पूरे पेमेंट्स लिखे जाते हैं। तो जब पेमेंट्स ज्यादा होते हैं और रिसीट्स कम होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होने के पीछे बच्चों लोग सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है आपको, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होते हैं। तो उसकी वजह से फिर जनरली कंट्रीज क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करके लिखा है चिल्ड्रन, रिवैल्यूएशन मतलब हम लोग रुपी का रेट बढ़ाएंगे, मतलब पहले $1 यानी 65 रुपीज रहेगा। अच्छा, बाद में हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, $1 यानी 60 रुपीज, तो दैट इज लाइक रिवैल्यूएशन, इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। इफ स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हम लोग टोटल कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। अच्छा, देन देयर इज लाइक डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। इनिशियली चिल्ड्रन अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज रहेगा, तो व्हाट इज डिवैल्यूएशन, आप आगे जाके बोलोगे कि लाइक $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, चिल्ड्रन दैट इज डिवैल्यूएशन, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन। बट चलो इससे क्या होता है, इंडियन करेंसी जो होता है ना डॉलर्स के बदले में, दैट फेचेस मोर इंडियन करेंसी। मतलब पहले $1 के बदले में आपको 70 रुपए मिलते थे, अभी आपको $1 के बदले में 75 रुपीज मिलेंगे। इसकी वजह से बच्चों लोग इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, फिर इंपोर्ट्स कंट्रोल में आ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट $1 इज इक्वल टू 75 होना, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने $1 लाख का कुछ एक्सपोर्ट किया रहेगा तो पहले डॉलर का रेट 70 था, तो $1 लाख के बदले में मुझे 70 लाख मिलते थे, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद बच्चों लोग मुझे 75 लाख मिलेगा, तो 5 लाख का प्रॉफिट। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों लोग हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो डेफिसिट था वो सॉल्व होता है और हम लोग सरप्लस की तरफ जाते हैं। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर इंक्रीज्ड, नाउ दिस वाज नॉट इम्पोज्ड इन 1991 चिल्ड्रन। तो अपना आंसर क्या रहेगा, पॉइंट सी चिल्ड्रन, दैट इज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अच्छा, then children, the fifth one, which of the following was not a feature of the new industrial policy in 1991? क्या क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में एक तो था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दिस वाज देयर। अच्छा, परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी था, और मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो एक्ट था उसको हटाया गया था। तो बचता क्या बच्चे लोग यहाँ पे, सेटिंग अप ऑफ न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि उन्होंने बोला है
नॉट अ फीचर करके बोला है बच्चों लोग, क्या बोला हुआ है, नॉट अ फीचर. इट मीन्स चिल्ड्रन वी नो दैट कि लाइक सेटिंग अप ऑफ न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के नए कंपनीज को स्टार्ट किया जाएगा. मुझे लगता है उसका उल्टा हुआ था, गवर्नमेंट के कंपनीज को बेचने की कोशिश की जा रही थी बच्चों लोग यहाँ पे. ओके, सो द आंसर इज सेटिंग अप ऑफ न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अच्छा, आफ्टर दैट चिल्ड्रन द फिस्कल पॉलिसी widened in 1980s refers to widening between dash. क्या बोले देखो यहाँ पे बच्चों लोग की वाइडनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये जो लिखा गया था तभी, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, वाइडन करना का मतलब क्या होता है यहाँ पे. ठीक है, क्या गवर्नमेंट के बैंक लोन्स और डिपॉजिट्स बढ़ाए गए थे, नहीं. अच्छा, फॉरेन रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं. अच्छा, सब्सिडी और बजट के बीच में जो गैप था वो भी नहीं था. तो वाइडनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है चलो कि लाइक गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स में से जो मिलने वाला पैसा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी बाय ब्रिंगिंग मोर एक्टिविटीज इनटू टैक्स, और एट द सेम टाइम जो टैक्स की वजह से ज्यादा पैसा आता है उसको खर्चा भी करेंगे यहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू ऑल्सो इंक्रीज द मतलब पूरे बजट को बढ़ाया गया, रिसीट्स को भी बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाओ. ओके, नाउ the FDI limit in the insurance sector is dash. So according to your book children, it's 49% foreign direct investment in the insurance sector. 100%, 58%, 43% नहीं है बच्चों लोग. 58 और 43 वो तो ऐसा कुछ लिमिट होता नहीं जनरली, हम लोगों को पता है चिल्ड्रन इज इधर 24%, 49, 51, 74 ऐसे कुछ स्लैब्स होते हैं ना, 49. हाँ, तो यहाँ पे 49 का स्लैब आता है. ओके, देन the next fill in the blank children which says liberalization policy was announced on dash January 1st, April 1st, July 24th, none of the above. Majority of the decisions which come here children, that is during the monsoon session, July 24th, 1991. Okay, so that is the time children when the new economic policy of 1991 was announced. Okay, PV Narasimha Rao. Then I told you about the name of Monsoon Singh, who was finance minister at that time. मैंने आपको पूरा उसका history बता दिया था. So children, this could be some of the objectives related to our chapter 1. Okay, beyond that children, when we go towards chapter number 2, social infrastructure, education, health and family welfare in India. Now choose the correct alternatives statements that we have here. So the question goes like this: according to Human Development Report 2016, India's HDI rank, HDI क्या होता है बच्चों लोग, that is Human Development Index, United Nations Development Program हर साल बच्चों लोग हर एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करता है, फिर कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है. तो 188 कंट्रीज के बीच में से इंडिया का रैंक था चिल्ड्रन 131. Okay, so the answer is 131. Okay, acha, then which of the following is not true of the Right to Education Act? Right to Education Act में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको ढूंढना है. याद रखना कौन सा सही है नहीं, क्योंकि सब सही रहेंगे, एक ही गलत रहेगा. Free education to all the children between 6 and 14 years. Yes, that's the right answer children. Answer is right, but we want the wrong one. It was enacted in 2009. ये भी बराबर है. अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा है कि like it was an adult literacy program. Wrong children. Right to education is for the children between 6 and 14. अगर वो 6 and 14 है तो सीधी सी बात है कि like वो adult से relate नहीं करता रहेगा. And it is aimed at providing quality elementary education. ये भी बराबर है. तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा है children? C. That it is an adult literacy. It was not an adult literacy program children. Next, the scheme for providing residential schools as elementary level for girls. उसके लिए बच्चों लोग कौन सा स्कीम इंप्लीमेंट किया गया था, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्कीम्स हैं गर्ल्स के एजुकेशन के लिए. तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, दे आर नॉट रेजिडेंट स्कूल चिल्ड्रन, मतलब दिस शुड बी द रॉन्ग ऑप्शन दैट वी हैव. फिर बच्चों यहाँ पे लिखा मॉडल स्कूल स्कीम, दैट डजंट हैव
मॉडल स्कूल्स बच्चों लिए गवर्नमेंट स्टार्ट करती थी बाकी लोगों के लिए मॉडल्स दिखाने के लिए एक स्कूल ऐसे होना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लाइक ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था बच्चों, मीडियम स्कूल्स। तो बचता क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सो दिस इज द राइट आंसर चिल्ड्रन। सो रेसिडेंट स्कूल फॉर एलिमेंट्री लेवल फॉर गर्ल्स। The scheme for improving access to secondary education is dash. क्या बोला देखो, हाँ, the scheme for improving access to secondary education. तो secondary education को access देने के लिए हमने जो scheme implement किया हुआ है उस scheme का नाम क्या रहेगा? उस scheme का नाम आता है बच्चों लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लेकिन उन्होंने कौन कौन से नाम दिए वो भी एक बार देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, गलत जवाब। अच्छा, मॉडल स्कूल स्कीम, गलत जवाब। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यह सही जवाब। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिस इज ओनली फॉर द गर्ल्स, जो अभी पहले वाले ऑप्शन में आया था, तो ये भी गलत जवाब। अच्छा, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आर एट द डैश लेवल ऑफ पब्लिक health infrastructure. If you remember children, we have those three levels: primary, secondary and tertiary. AIMS बच्चों लोग ये सबसे टॉप पे आते हैं, इसलिए children we can call them as tertiary. किसमें काउंट करेंगे इसको हम लोग? tertiary में काउंट करते हैं. So your answer is option C. प्राइमरी नहीं आएगा, सेकेंडरी भी नहीं आता है, या फिर none of the above भी नहीं आएगा. Then राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना provides health insurance coverage to dash. Last से start करते only women and children. No, it doesn't have to do anything with that gender. The entire population, no. अच्छा, workers in the organized sector. Organized sectors को बच्चों को देने की जरूरत नहीं क्योंकि देंगे almost everything. तो बचता क्या है? Workers in the unorganized sector. तो जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको अगर सपोज फॉर एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस चाहिए तो वो लोग थोड़ा सा कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. ओके, देन चिल्ड्रन द नेक्स्ट वन व्हिच टॉक्स अबाउट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं बच्चों पीएचसी और फिर सीएचसी ना. तो कौन से लेवल पे आएंगे? प्राइमरी लेवल पे तो आएगा नहीं. ओके, टर्शरी पे तो एम्स की बात की थी हमने, तो बचता क्या है? सेकेंडरी लेवल. और नन ऑफ द अबव शुड बी द रॉन्ग आंसर. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, इंडियाज एचडीआई रैंक अभी अभी मैंने आपको बताया था 131 among 188 countries children. ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस which will be based on which model children? The first model जहां पे हमने अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की, एंड along with that children we also spoke about the health and education in India. Okay, now the next model that we had children was actually based on sustainable development goals and policy measures. Okay, sustainable development goals and policy measures. The sustainable development goals, I told you children किस तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया गया था, इन द सेंस कि लाइक फर्स्ट वी हैड समथिंग रिलेटेड टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और फिर धीरे धीरे उसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ लाया था. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व आउट दिस आंसर चिल्ड्रन. चूज द करेक्ट आंसर एंड रीड आउट दिस स्टेटमेंट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एचडीआई कंपोजिट. अच्छा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये चारों में से कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता? बच्चों लोग, हमारे हेल्थ को देखा जाता है. अच्छा, लिटरेसी रेट देखते हैं यानी एजुकेशन आता है, और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो बचता क्या अपने पास? ऑड मैन आउट, कल्चर. कल्चर इज नॉट इंक्लूडेड देयर. अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बच्चों लोग कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही जवाब, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सही जवाब, सोशल डेवलपमेंट सही जवाब. तो मुझे लगता है एक्चुअल जवाब है अपना ऑल ऑफ द अबाव. तो सबके सब ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा, फिर डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया. पहले था बच्चों प्लानिंग कमीशन, अभी है नहीं.
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नथिंग टू डू विद दिस। तो अभी बच्चों जो इंडिया का थिंक टैंक आता है उसको हम लोग बुलाते हैं नीति आयोग, और आपका सही जवाब है पॉइंट सी, दैट्स नीति आयोग। अच्छा, डैश इज एन इनिशिएटिव टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? स्किल इंडिया, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता बच्चों इसमें। इन्वेस्ट इंडिया, नहीं, दैट इज टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। नीति आयोग, ये हमारा थिंक टैंक है, तो बचता है बच्चों लोग मेक इन इंडिया। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन यूएनडीपी's एचडीआई कॉम्पोजिट, बताया मैंने आपको कल्चर, एंड डैश इज इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सो दैट शुड बी द राइट आंसर चिल्ड्रन दैट वी हैव, राइट? Okay, now here as we move around children, our next discussion part that we have, it's written as chapter 4, and we will be trying to discuss some things related to foreign investment in India. Okay, so let's move forward children with the chapter number 4, foreign investments in India. Yes children, and the first question in front of us is, which of the following statements best defines FDI? मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों लोग FDI को डिफाइन करता है? Okay, that is what is foreign direct investment. अच्छा, buying shares of companies in a foreign country without gaining control over management. You will be totally interested in management children. अच्छा, loans from multinational institutions like IFM and the World Bank. It's like IMF, International Monetary Fund and World Bank. Children, इसमें loans की कुछ बात नहीं होती है. अच्छा, investments in foreign assets to acquire lasting business interest. Yes, आप उनके business में interested हो, इसीलिए आपने उनके assets में investments किए बच्चों. That is foreign direct investments. अगर आप उनके business में interested नहीं रहोगे तो फिर उसको हम लोग foreign portfolio investment बुलाते हैं children. We have got a foreign direct investment and foreign portfolio investment, and then foreign currency deposits of non-resident citizens. तो NRI लोगों के foreign currency के जो deposits होते हैं FCN ना children, हाँ, तो that is nothing to do with the FDI children. तो अपना आंसर क्या रहेगा? सही जवाब है बच्चों point number C. Now which of the following constitutes foreign direct investment? इसमें से कौन सी चीज बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है? सबसे पहला परचेस ऑफ स्टॉक। स्टॉक मतलब बच्चों यहाँ पे शेयर्स होता है एक्चुअली। ओके, तो मुझे लगता है इट वुड बी ए पार्ट एंड आंसर। फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स बाय अ होली ओन्ड सब्सिडियरी अब्रॉड, मतलब आपने जो प्रॉफिट्स कमाए आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया वहीं पे। यस, दैट कुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द आंसर चिल्ड्रन। एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स टू अ फॉरेन सब्सिडियरी, मतलब आपने एक कंपनी अब्रॉड में स्टार्ट किया हुआ है, आपका आप होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडियरी कंपनी, आपने उनको कुछ फंड्स लेंडिंग किए, तो दिस कुड बी आल्सो पार्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अपना आंसर आता है चिल्ड्रन ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2017? एंड द आंसर वुड बी चिल्ड्रन telecommunications, retail, okay, banking is also there, software, लेकिन 2017 में सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्लो हुआ था इट वाज इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर चिल्ड्रन। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द कंट्री हैज बीन द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2017? अप्रैल से लेकर दिसंबर 2017 तक किस कंट्री ने बच्चों लोग सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो कराया है? और आपका आंसर है चिल्ड्रन, it's like Mauritius. Okay, neither Japan, USA, Singapore, बड़ी कंट्रीज को छोड़ के Mauritius has got highest FDI in India. So which of the following is not one of the benefits of FDI? फॉरेन कंट्रीज जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन, तो उसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? देखो पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है उन्होंने? सेक्टोरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर सब डेवलप हो जाएंगे, ये तो बराबर है। अच्छा, वो लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, देन
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बच्चों, वो लोग आएंगे यहाँ पे तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ये भी सही है। ये जो लिखा है ना बच्चों, द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, दिस इज नॉट अ बेनिफिट चिल्ड्रन बट इट्स अ डीमेरिट, क्योंकि फॉरेन कंपनीज बच्चों लोग ऐड कर करके, अच्छा मीडिया के जरिए आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करने पे मजबूर कर देते हैं बच्चों लोग जो चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं होती है, एंड वी जस्ट वांट टू हैव एवरीथिंग दैट वी सी इन द मार्केट चिल्ड्रन. So it's like spending nature of the people. It's not a benefit. It leads to unwanted expenditures and burdens, financial burdens on the family children. And which of the following are the advantages of TNC? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के एडवांटेजेस कौन कौन से है करके पूछा है, देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के. अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. डायरेक्ट थोड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे कि बच्चों जब हम लोग एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको आप क्या नाम दोगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. लेकिन फिर बच्चों पता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस सब में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसको आप क्या नाम दोगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये भी तो फायदा है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो बच्चों लोग कंज्यूमर्स को फायदा होगा, और इंडस्ट्रियल बेस एक्सपांड होगा बच्चों लोग. तो मुझे लगता है अपना आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबाव, राइट. अच्छा, नाउ चिल्ड्रन सपोज कि लाइक when you this would be like some of the MCQ children that we have related to module number 1. कौन सा मॉड्यूल था ये बच्चों लोग, फर्स्ट वाला मॉड्यूल. अभी सेकेंड वाला जो मॉड्यूल अपना रहेगा वो आपको पता है क्योंकि हम लोग रिसेंटली उसको डिस्कस कर रहे थे. इट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन चिल्ड्रन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस. सो दैट चिल्ड्रन वी विल बी डिस्कसिंग एज वेल. ठीक है, within 1 or 2 days children I should be back with you with more MCQs to be solved children, that will be helping you to answer your paper in the coming semester exam, that is the 5th semester children. ठीक है. अच्छा, it will be easy, overall आप जो स्टडी करते हो उसके ऊपर ही बेस्ड होता है. हाँ, कौन सा आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है सब पूछ नहीं सकते क्योंकि MCQs है बच्चे लोग तो बहुत सारा पूछा जा सकता है. अच्छा, हाँ, बट आप ऐसे बैठ के पास नहीं हो सकते चिल्ड्रन, यू विल हैव टू स्टडी अ बिट. तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करा ही रहा हूं. अगर आपके पास मनन प्रकाशन का बुक वगैरह रहेगा उसके बैक साइड में भी बच्चों कुछ ऑप्शंस के साथ में दिए रहते हैं. यू आर प्रोवाइडेड विद द आंसर्स, यू कैन वेल गो थ्रू दैट, और शॉर्टकट में बच्चों आपको एग्जाम पास करने को मिलेगा. आपको 3 घंटा बैठ के कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सम ऑब्जेक्टिव्स एंड पास योर एग्जाम. ओके, सो विल जस्ट क्लोज डाउन हियर टुडे चिल्ड्रन. इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ the second module ka MCQs that we have children. Okay, so that's all for today. Take care everyone. Bye. See you in the next lecture.